I started my career as an IT entrepreneur. As I'm coming from a business family, so coming from business family by default business ही करना था और तो कुछ समझ आता ही नहीं था और कोई चॉइस ही नहीं था. ठीक है और बिजनेस भी फादर वाला करना था. But somehow को पता नहीं क्या हुआ अंदर because I was trained to take care of my be one of part of my father's business. But from my childhood I always thought कि यार childhood and college में आया तो you know it's very easy to join your father's business. This is my thinking. Was my thinking. Sorry. This was my thinking. It is always easy to join your father's business. And always, I mean, आपको कुर्सी टेबल मिलती है, you know, you always like that, and it's easy. But I never wanted people to respect me for my position in terms because I was the daughter of my father. समझा? इसलिए I always wanted to create something for myself. So fortunately or unfortunately, I took a decision that I do not want to join my father's business. ठीक है? It was unfortunate, personal on a very personal level. It was very unfortunate because obviously when you are being groomed for it and when you don't do it, it's a very unfortunate thing. But fortunately, इसलिए क्योंकि then the real struggle started. The struggle started in which way I would never. That's why none of my companies are anywhere related to what my father's company's names are or brand names are. And that's where the struggle started in terms of me going to the field and talking to people. Basic fundamental of an entrepreneur. Take it from. आज मैं आपको 2 या 3 चीज खास important दूँगी. And as an entrepreneur, you have to work at the ground level. अगर आप सोचोगे कि मैंने पढ़ाई की है IIM, MBA जो भी आपसे पढ़ के रखी अच्छी बात है, very good, go ahead do it. But if you don't go work with the ground level, you are not going to succeed in life. So I started going on the field, understanding the basics, root level पे, grassroots level पे काम किया, ठीक है? And I started my IT company. अब IT company क्यों? Very simple. Because in those days IT was a बहुत बड़ी चीज थी. Information technology बहुत बड़ी चीज कही जाती थी और लोगों को समझ ही नहीं पड़ता था क्या है. Or secondly, my personal interest for IT was it was a knowledge field. I was always taught from my childhood कि आप knowledge is power. ठीक है, money is not power. Knowledge is power. So you know, IT is a knowledge field. मैं जब अपना मास्टर्स कर रही थी तभी भी I still remember कि वो पढ़ाई I was always a backbencher. तो पीछे बैठ के हमेशा मैं प्रोग्राम्स लिखती थी. You know, I always feel कि मैं बहुत होशियार अक्ल वाली हूँ, right? So मैं पीछे बैठ के प्रोग्राम लिखती थी. जबकि मैंने 2-3 कंप्यूटर क्लासेस चेंज किए थे एंड इसलिए चेंज किए थे क्योंकि मेरे को महंगे पढ़ते थे और मेरे को सही वो सिखाते नहीं थे एंड द कैपिटल इज ऑब्वियसली मनी एंड इन while in IT you don't require that much capital. In IT your capital is your brains. So that is the reason why I started with IT and in fact I think I also got what you call passionate about it कि यार मेरे को अच्छा लगा क्योंकि वो नॉलेज वाला फंडा था and everybody feels they are very brilliant होशियार blah 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 blah. So I started with that. Then it happened such कि अब मैंने जब स्टार्ट किया ये सुनने वाली बात है बहुत सुनने अच्छी वाली बात है कि मैंने स्टार्टेड विद क्या करेंगे तो एक तो मेरा एकदम इनिशियल स्टार्टिंग वाज विद द सॉफ्टवेयर फॉर ह्यूमन रिसोर्स एंड ऑल दैट बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग व्हिच डिड समवॉट वेल बट देन आई जंप टू मल्टीमीडिया. एट दैट टाइम मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन अभी तो एक ढूंढो 10 मिनट उस टाइम मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन एक बहुत बड़ी चीज है. उसकी एडिटिंग और वो सब के लिए बॉम्बे जाना पड़े बड़े स्टूडियोज चाहिए 3 स्टूडियो चाहिए रेंडरिंग करने में बहुत टाइम लगता है पूरे रात कंप्यूटर्स चलते हैं you know blah 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 blah. So when I started with multimedia at that time, just to give you an idea, the cost of a CD drive at that time used to cost 15,000 rupees. 15,000 रुपए की CD drive जो भी I think 500 रुपए की आती है 700 रुपए की है. So you can understand कि उस वक्त क्या सीन होगा, ठीक है? तो when I started with that, people did not understand multimedia. और जो अंडरस्टैंड कर रहे थे वो उसको पैसा बहुत लग रहा था क्योंकि 5-7 लाख का वो प्रेजेंटेशन करने लगा. So that didn't work out. But when I was struggling for that. It happens such के फील्ड में जाते थे जब सबको मिलते थे तो I got a company who were into web they were into something in web I think नहीं they were into right yeah they were into this directories telephone directory कौन सी directory बनाते थे वो industrial directory बनाते थे so they approached me with reference year like sorry what is the reference year like which year की बात कर रहे हो India what you want me to ask the year was in 93 approx 93-94 you got it It was अच्छा I was talking of 93-94 ठीक है. So coming back to they were into this industrial directories so they asked me कि ये we will create a web उसको तो पोर्टल भी कोई शायद जानते नहीं थे so उनके लिए वेबसाइट और वेब पेजेस बनाने थे. I was very cool about it. अरे यार अच्छा हुआ क्योंकि मैं मल्टीमीडिया की कोई आनी जानी हो नहीं रही है मेरी. But it happens कि मैंने अपना there
और लगाए और अब मेरे पास पैसे नहीं थे एम्प्लॉय करने के लिए लोगों को, सिंपल है दैट। एंड सेकंडली पीपल डिड नॉट हैव, दे डिडंट इवन नो ऑफ वेब पेजेस और वेबसाइट्स है। इंपॉर्टेंट पार्ट उनको सिखाया नहीं जाता था, HTML किसी को सिखाया नहीं जाता था उस वक्त पे। तो व्हाट आई डिड, आई टुक सम पार्ट टाइमर्स एंड टोल्ड देम I'll teach you HTML and you got to work free for me, simple period. And I'll teach you in terms of what I said, you don't expect me to teach you, I'll get you a few books and give you PCs and you just work on that. Similarly for the designing part of it, I went to CN and spoke to the principal and said कि देखो मेरे पास I want to get into this and this is the new upcoming field designing. उस वक्त PageMaker was very popular, PageMaker and Corel was popular, Photoshop बाद में आया। So I said what I can do is I can give facilities to the students who want to work, in terms of give them facility that they can come at our end and they can learn as well as work. So notice board पे लगा दिया और I got lot of students for that. And so फिर तो मेरे को 2 शिफ्ट चालू कर देनी पड़ी because there are a lot of people who were interested. तो इसलिए that is how I managed initially to start my work. So मेरा स्टूडियो तैयार हो गया, टेक्निकली तैयार हो गया, HTML तैयार हो गया। उस वक्त HTML was the hardcore programming thing. Front page था but we did not work in front page because I did not like front page. एक मिनट, vibrate बहुत मार रहे हैं इसको। सेट हो गया था, मैंने कहा हाँ कि नहीं यार निकल पड़े। बट ना व्हाट हैपेंड कि जो कंपनी थी जिसके साथ मेरा टाई अप था, वो कंपनी ने हाथ नीचे कर दिया कि भैया हमको तो ये काम नहीं करना। तो अब मेरा जो टेक्निकल टाई अप है, टेक्निकल जो मेरा काम था वो बिल्कुल इट वेंट फॉर अ टॉस। सो नाउ आई थॉट नाउ आई डोंट हैव अ चॉइस बट लेट मी डू वन थिंग। मल्टीमीडिया की आनी जानी हो नहीं रही है, लोगों को बहुत पैसा लग रहा है, तो लेट मी डू वन थिंग, लेट मी स्टार्ट विद माय सेल्फ doing it. So then we started ourselves marketing of websites. So that is how I started my career. One part of it was the websites, IT. The best part again, when we used to go and talk with people, you know, as such when you start your business, you are very fundamentally clear कि corporates में जाएंगे बिकेगा. But my experience and take home thing was कि corporates में मेरा बहुत खराब experience रहा है, कई लोगों का रहा है, उसमें मेरा भी है. The reason being कि वो चाय का ताकि के लिए गर्म होता था उसमें, you understand that? Decisions आते नहीं थे, घुमाते थे, डाउन द लेवल आदमी पहले घुमा में बेचारा साहब 5 मिनट में अपॉइंटमेंट दे रहे और वो डाउन द लेवल आदमी साहब बिजी है, साहब यहाँ मीटिंग का पिटांगा पुटांग बहुत दैट इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस विद देम एंड और फाइनली जब होता है तो साहब तो के करो डाउन द लेवल टंकी मारे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 वो क्या करेंगे, एकदम नेगोशिएट मारे। क्यों नेगोशिएट? हमारी कंपनी के साथ तुम ज्वाइन हो गए तो तुमको बहुत ऑर्डर मिलेंगे, यू नो। ऐसा क्या बोले यार, मेरा दिल चाहता है क्या बोले। But you know, so ultimately at the end of the day, and yes, I did lot of free jobs. I did lot of free jobs to prove myself, sir. I had to do free jobs to prove myself because उस वक्त मेरे पास ऐसा client list नहीं था, right? But अब now is like abundant demand कि सब ये मेरा client list है, ये काम किया है, now I cannot do free job for you now. If you want, pay me some money and then we'll go ahead. So at that time, what I'm trying to tell you guys, as an entrepreneur, you have to also do a lot of free jobs. But see to it that you are not misused. People don't misuse as a doormat. I was very clear कि अगर मैंने किसी का फ्री जॉब किया है तो मैं बहुत क्लियर थी कि वो आदमी मुझे मिसयूज ना करे, क्योंकि डिजाइनिंग इज सच अ फील्ड कि वो लोग क्या करेंगे पहले, अरे यार ये अच्छा, क्योंकि इनिशियली जब तुम डिजाइन ले करते हो कोई भी इन एडवर्टाइजमेंट फील्ड या वेबसाइट फील्ड कोई भी फील्ड, व्हेन इनिशियली पुट अप अ डिजाइन इन प्लेस यू डोंट पुट एवरीथिंग इनटू दैट। एक ड्राफ्ट बनाते हो, बरोबर है, फिर यू नो द डिजाइन इवॉल्व होती है विद द इनपुट्स फ्रॉम योर कस्टमर। तो कई कस्टमर क्या करें, कुछ देखे फिर उनको जजमेंट आवे नहीं है व्हाटएवर रीजंस, तो फिर वो सोचे ऐसे भी पैसा दी, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंसेस रहेगी जिसने पैसे नहीं दिए वो दे ट्राई टू देन बट कि नहीं यार मजा नहीं आया, देन वी हैव टू से कि नहीं सर इसमें इतना जल्दी थोड़ी मजा आने वाला है, ये तो कंसेप्ट है, ऐसे मजा नहीं आता, ऐसे डिजाइन नहीं बनती कि पहले दिन बना दी मजा आ गया, ठीक है। सो वी वर वेरी क्लियर, सो दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू, डोंट बी मिसयूज, क्योंकि होगा क्या एज एन एंटरप्रेन्योर मैंने ये महसूस कई बार किया था कि पीपल ट्राई टू यूज यू, सिंपल, ठीक है, यूज इनका मैं कहना फ्री में काम कर रहा था। एक तो मेरा मेजर चैलेंज था, प्रॉब्लम था, मेरा चैलेंज ये था कि एक तो लड़की, दूसरा यंग इन टर्म्स ऑफ ये बच्चे लगे हम लोग, बट लकीली एक चीज अच्छी क्या हुई कि बच्चे थोड़े कम लगने लगे, क्योंकि आईटी फील्ड ऐसा था जिसमें 23 साल का लड़का सीईओ था। सो आईटी वाज द ओनली फील्ड वहां तुम्हें 23 साल का सीईओ बोला, वरना जब तुम किसी बॉस को मिलने जाओ तो एल्डरली आदमी मिलेंगे और अपने बच्चे जैसे बात लगे। बट बीइंग अ गर्ल मेरे को फायदा ये भी हुआ कि मुझे बाहर अपॉइंटमेंट हो के ना वो बाहर बैठने को कम टाइम देते थे, 10 मिनट में बुला लेते थे। सो दैट वाज माय एडेड बेनिफिट टू इट। क्यों भैया इसी में ऐसी आ रही है क्या? ठीक है, तो कमिंग बैक टू, सो व्हाट आई वांट टू
what learning I want you to take home is see to it that people don't misuse your talent. And for how to see to it is very very simple. कि जब भी यही करें कि जब भी आप you have to communicate with your customer, your client, and see to it every time उसके दिमाग में डालो कि सर इसके बाद ये लगेगा और इतना इसका कैसा लगेगा in a very sweet tone, so that the client cannot budge. ये मेरा हमेशा रहा है और I would always like to say because I hear a lot of stories when I go to seminars कि हमको लोग use करते हैं फ्री में करवाते हैं because we are freshers. Secondly, then what happened? Okay, so then I got into this field and the challenge also corporates मेरे को फायदा ही नहीं था. तो challenge भाई को जब मैं वर्कवार जाती थी, ओडो जाती थी, दरोडा जाती थी, नारोल जाती थी, उस वक्त तो लैपटॉप नहीं था, I could not afford a laptop for my company, for myself, for my company. तो हम लोग खुद वो डेस्कटॉप लेके जाते थे. तो the best part about वटवा ओडो नरोडा नारोल is that आप लोग सोचोगे यार यहाँ से वटवा ओडो नरोडा नारोल ने मेरा कैरियर बनाया है. वहाँ पे वो मालिक खुद फैक्ट्री शॉप फ्लोर पे वो मालिक जैसा दिखे ही नहीं, हाथ पे राड़ो या गोल्ड चेन हो तब पता चले हाँ ये मालिक. सही सीरियसली वरना मालिक जैसा दिखा ना हाँ मैं बोलो करके ऐसा खड़ा हो जाए. तो साला बोला अपने पहले सुनिए मौजूद से बात कर रहे हैं. फिर वो मार्केटिंग वाला पूछ रहा है क्या है मालिक है हाँ सर you know that's it. And the best part they were quite not IT savvy ऐसे थे नहीं, कंप्यूटर शायद उनके पास था भी नहीं तब, but they were very क्या कहते हैं they understood this. And what they like a demo. फिर मजा क्या है डेमो देखा. अब डेमो में खरखर मॉडर्न डायलॉग मॉडर्न चलता है, ठीक है. अब उसकी वजह से मेरा केमिकल्स डाइस ऑफ इंडस्ट्री में ग्रिप हो गई थी. एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दैट ग्रिप अगेन गुड. टेक दैट आल्सो इन माइंड. कई बार लोग अगर मेरे कॉम्पिटिटर बोलते थे साहब ये सब डाइस ऑफ की साइट बनाती है, कॉम्पिटिशन से बनाती है, तो मैं उल्टा कहती कि सर अगर आपकी साइट खुद कॉम्पिटिटर्स की साइट मैंने बनाई है, अगर मेरे पास 10 अहमदाबाद के बेस्ट डाइस्टर्स वाले आज की तारीख में भी मेरे साथ है बेस्ट डाइस्टर, उसका मतलब ये क्या है हाउ टू मेंटेन देम. इससे तो आपको फायदा है कि मैं 10 से तो आपका 11वां और 12वां होगा. इट इज नॉट अगेंस्ट यू, सो यू विल बेटर गिव मी योर ऑर्डर. कभी बैक टू जो वटवा ऑर्डर होना पहले उसके 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ का टर्नओवर हुआ है, बट वो ऑर्डर देने में उसको 5 मिनट भी ना लगे. वंस इट मेक्स इट अप, इट डिसाइड्स, वंस इट डिसाइड्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. या वो बोले कि बहन बनाओ क्योंकि दैट गेट अ वेरी स्ट्रांग फॉलो. गाना कर देने का आदमी को तब तो टेलीफोन था, मोबाइल तो था ही नहीं उतना, और लैंडलाइन थी तो कैसा लगता था. अभी कभी लैंडलाइन टू लैंडलाइन की वाला चक्कर करके उसको हर दर या वो काले फोन कर दो, 4 दिवस પછી कर दो, 6 दिवस પછી फोन कर दो, उसको गाना कर देने का. ऐसा गाना करने का फॉलो अप में हम लोग बहुत क्लियर थे. अगर अगले ने फोन रख दिया हो ना, कई बार आदमी का माइंडसेट होता है वो कोई दूसरे काम पे होता है, बीवी से झगड़ के आता होता है, मजदूर का प्रॉब्लम होता है, कुछ भी होता है, तो माइंडसेट उसका कहीं भी होता है, तो वो कई बार ना बची छुट्टी करके रख दिया. तो भी 2 दिन के बाद सर नाराज थी क्या, सिंपल. So you don't never feel offended. I always told my people that you should never feel offended when you are doing your sales and marketing and follow. और इतना हद तक फॉलो करो कि अगला ऐसा बोल ही देवे कि भाई बनाओ तो तुम्हारी जरूरत बनाओ. और ऐसा हुआ मेरे साथ. जब भी जितने भी मेरे फॉलोअप्स थे या जितने भी हमारी डायरी में या अकाउंट में थे ये वो आज भी तो कॉल बोलो कन्वर्ट हुए ही हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है. एंड वंस इनिशियली आता है यू नो द बेस्ट थिंग इन मार्केटिंग सेल्स यू नो दैट. ऐसे तो मैं टेक्निकल पर्सन नहीं हूं, मैं सेल्स मार्केटिंग ज्यादा बात करती हूं बिकॉज़ अल्टीमेटली जो बिकता है जो सेल होता है वही फाइनल होता है, वरना टेक्नोलॉजी तो आती है जाती है, डजंट मेक मच सेंस. सिंपल, लेट्स एक्सेप्ट दैट. बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है बट इफ यू कांट सेल इट नो गुड अबाउट दैट. तो जो what we did is we used to do lot of follow-ups. What I want the guys want to do that whatever you do, whichever thing you do, you got to sell your product and do lots of follow-ups and never take offend. कभी मत हो जाना. I know a lot of you क्योंकि मेरे यहाँ तो बच्चे जल्दी offend हो जाते हैं, उनको ईगो आ जाता है. मैंने कहा तेरे को ईगो कहाँ से आ गया इसमें? अगर लेटर से तेरा भी कई बार मूड नहीं होता है तो तू भी कभी ऐसा बोल देता है कि चौके ना, तो भाई अगर कस्टमर का मूड नहीं है नहीं मेरी इंसल्ट कर दी. अरे कहाँ इंसल्ट करती, उसमें इंसल्ट क्या, अगर उसको नहीं चाहिए तो तू जबरदस्ती थोड़ी ठपकाएगा, लेकिन आज नहीं तो कल उसको चाहिए. और ये जो फंडा था मेरे को मेरे आईएसपी बिजनेस में भी जो बाद में था उसमें भी काम लगा, क्योंकि अगर एक आईएसपी कनेक्शन किसी ने ले लिया है तो वो लाइफ टाइम तो चलने वाला है नहीं. गो ऑन रिपीटिंग दैट कॉल. सो इफ नॉट टुडे टुमारो इज गोइंग टू कम एंड टेक इट फ्रॉम यू. कमिंग बैक टू द जर्नी पार्ट ऑफ इट. सो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड माय करियर. नाउ वन मोर, सो दैट्स हाउ आई यूज्ड टू गेट ऑर्डर्स. तो मेरे को वटवा ऑर्डर नरोडा नारोल से जल्दी ऑर्डर मिलते थे, कॉर्पोरेट से ऑर्डर नहीं मिलते थे. और आज की तारीख में भी वही है, चाय करता कि अगर वो सुधरने वाले नहीं और हम भी सुधरने वाले नहीं, हम उनको वो करते हैं. और कई बार यू नो यू हैव टू दैट बाईपास देम, व्हिच नाउ वी कैन डू. एट दैट स्टेज वी कुड नॉट डू इट बिकॉज़ वी वर न्यू, बट नाउ एट दिस स्टेज वी कैन डू इट. ठीक है. एंड नाउ थैंक्स टू ईमेल आल्सो. वो पहले ईमेल इतना यूज नहीं होता था, अभी तो डायरेक्ट उसके सीईओ से ईमेल डाल दो, काम हो जाता है. अपना अपॉइंटमेंट मिल जाती है. तुमको पता ईमेल डाल दिया था, फोन को दिया था. सो कमिंग बैक टू सब what was यार, आप लोग भुला देते हो मेरा पॉइंट. So now it's more
easier to do things. A very important thing. Now, what is very important? जब हम बेचने जाते हैं, दो important चीजें again समझाती हूँ. Again, कि एक तो let us say तब Yahoo बहुत पॉपुलर था. People did not know Google था ही नहीं. Yahoo यानी शम्मी कपूर को मैंने कहा सर शम्मी कपूर. क्या फर्क पड़ता है शम्मी कपूर से कोई भी हो, अपने को फर्क पड़ता है तो देखना है. और डाइस स्टफ का सर्च दे देते. जैसे डाइस स्टफ का Yahoo का सर्च दे दे, तो कई बार डिपेंड्स. कुछ पर्टिकुलर ऐसी डाइस की जगह तो कुछ कंपनीज फॉरेन इंडियन की कंपनीज तो बहुत कम दिखा रहे, फॉरेन की बहुत सारी कंपनीज दिखा रहे. हम बोले सर देखो इतनी सारी कंपनी आपकी नहीं है, आप करोगे तो आपको बहुत फायदा होगा. आप समझे? सो दिस इज व्हाट वी यूज्ड टू टेल देम, क्योंकि कोई नहीं होता और अगर कई बार कोई कंपनी नहीं होती, सर देखो कोई नहीं आप कर लो तो आपका नंबर आ जाएगा. सो यू हैव टू ऑलवेज टेकल, क्योंकि इनिशियली हमको भी आ रही है तो सर कोई कंपनी नहीं है तो बोलेगा कोई नहीं है तो मैं क्यों रहूं. तो वी यूज्ड टू टैकल इट दिस वे कि सर कोई नहीं, आ जाओ आपका नंबर पहले हो जाएगा. So these are the things that you have to always convert your ये मेरा एक अच्छा favorite example है, always convert your weaknesses into strengths. और ये example भी मैंने फील्ड में ही सीखा था. एक बार जा रहे थे तो अपने रास्ते में वो लोग डब्बे बाटी बेचने वाले आते, देखा है? अभी कोई कैप, क्रिसमस की कैप भी बेची बीच में किसी ने, सब इस तरह की चीजें बेचती है ना, आइडिया है ना? तो एक आदमी कैमरा बेच रहा था, तो बोला कि अरे बहुत अच्छा कैमरा है, एकदम नेचुरल फोटो पड़ेंगे. इसमें अच्छा है, ठीक है. तू बोलता है अच्छा होगा कि नेचुरल फोटो पड़ेंगे क्या है? बोला फ्लैश नहीं, इसलिए अंधेरे में भी नेचुरल पड़ेंगे. So he was learning his weaknesses into strength. So this is the thing which I learned. क्या strengths, weakness को strength में convert करो. Other point. जब हम वेबसाइट्स बेचने जाते थे, people को वेबसाइट तो बहुत दूर की बात है. वेब पेज का थोड़ा ज्ञान था, तो बोले बहन हमें तो वेब पेज चाहिए. और मैं बोला सर, और फिर बोले वेब पेज और वेबसाइट में फर्क क्या? सिंपल यार, तो हम सर यू नो हाउ टू कीप इट सिंपल स्टूपिड वाला फंडा था. ये तो कीप इट सिंपल किस तो बाद में सीखे. कीप इट सिंपल पहले हम यही बोलते थे कि सर एक काम कीजिए आप क्या कहते हैं, वेब पेज यानी फ्लैट में रहते हो और वेबसाइट यानी बंगलो में रहते हो. सर आपको बंगलो में रहना? हाँ बंगलो में रहना. सो यू नो this is the level of but ultimately at the end of the day we were one of the topmost companies in websites and websites. ठीक है? Any comments? हमसे भी शेयर करो, हम भी सीखेंगे. मैंने एक बहुत जल्दी नोट ले लिया, मैं शेयर करना है और सीखना है. Nowadays what happens like अभी तो टाइम आपको एक PHP दे दो, मैथ के दे दो, सब कुछ अभी तो बहुत चेंज हो गया. इस टाइम हम नहीं बात करते, ऑगमेंटेड रियलिटी की बात करते हैं. मैं ये सुखी हुआ है. You don't always keep up one thing. हम सिक्स सेंस की बात करते हैं, बोला आवे ना आवे, गया दबाएगा. अभी इम्प्रेस करो ना कस्टमर को, क्योंकि अल्टीमेटली एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम यू. अगर आज मैं अगर किसी कस्टमर के सामने बैठी हूँ और अगर मैं उसको दो ज्ञान बीच में ई-कॉमर्स का ज्ञान बढ़ा देते, अभी इसका ज्ञान बढ़ाते, क्या करें कि आप ऐसे वो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का आज मैंने अपने एक कस्टमर का ज्ञान बढ़ा के आई हूँ. सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन तू फेमिना पे फॉरवर्ड देता है, उससे इधर देना. क्योंकि अल्टीमेटली वो कंपेयर करते हैं. So coming back to what I'm trying to tell you, you always give something more to your customer and he expects that from you. ठीक है? जिनके पास एक्सपेक्ट करते हैं ना, वो मिनरल वाटर सब एक्सपेक्ट करते हैं आपके पास. ठीक है? Actually, I was just with him, so I don't know. But you are that water person, no? I like to meet you because I have a project for us. I also learned to. I'm working on some project for village, rurals and water. Thank you. Coming back to this was क्या कहते हैं? This was a little brief story. Then I shifted. फिर वेबसाइट्स पे क्या हुआ? एरो नेटवर्क सब आ गए. बहुत चीप के पैसे लिए, चीप के कमाया, सबको खिलाया. You ultimately my fund is very clear in life. अगर अपने को मिलता है तो दूसरों को देने में क्या प्रॉब्लम? अपने को मिलता है तो मैं बहुत क्लियर हूँ. मैं कोई सेवा के मूड में नहीं हूँ. सिंपल है, अगर मेरे को मिलेगा तो मैं दूंगी. मैं मेरा पेट काट के नहीं दूंगी. सिंपल है. मेरे आदमी को भी बोलते थे भैया तेरे को खिलाने का है, यू डोंट एक्सपेक्ट मैं तुझे खिलाऊंगी, क्योंकि जिस दिन वो आदमी सोचेगा कि मुझे उसको खिलाना है वो काम नहीं करेगा. तो फिर मैं तो रखूँ उसको, मैं खुद ही ना करूँ. सिंपल. So I would always like to say कि you should have your core team strong, which everybody says that. अब हाँ, एक जमाने में एक पेज के 5,000 रुपए लेती थी. 5 पेज की वेबसाइट 25,000 रुपए हुए और एक पेज फीडबैक फॉर्म, एक पेज कॉन्टेक्ट अस. जो टेक्निकल समझ जाए क्या करना होता है, कुछ नहीं. बराबर है. 5,000 इन उस वीक से मैंने पैसे तो पैसे तो कमा लिए हमने और बांटे भी से. फिर सबको वो हाई चढ़ी किसकी पता है? वो पोर्टल बनाने की. वो कैसे हाई चढ़ी? तो वो कौन सी साइट 500 करोड़ में बिकी थी पता है? इंडिया. हाँ नहीं एक साइट थी. हाँ इंडिया $500 में बिक गई. स्टोरी सुन रहा था.
तो सब लोगों को एकदम हाई चढ़ के कि हम भी $500 बनाएंगे, हम भी बेचेंगे। हाँ, मैंने तो चांदी हो क्या डोमेन नेम दोस्ती यारी.com, दोस्ती.com, ये वो क्या सब साइट है कि डोमेन बुक किया, क्या मजा किया हमको भी पता था साइट थोड़ी 500 करोड़ में बिकने वाली है, मजाक है क्या। और वो 500 करोड़ की साइट जो बिकी ना, उसका टर्नओवर 1 करोड़ था, पता है तुमको। और वो भी पता है कि वो सत्यम सिद्धि चोर ने खरीदी थी, वो तो बाद में पता चला चोरी वाली बात। तो वो तो सिद्धि की चोरी सुनी थी ना, सिद्धि नहीं सत्यम की चोरी सुनी ना, मेरे को तो डिप्रेशन आ गया था कि मैं नहीं कर पाऊँ। हमसे कभी नहीं पाएंगे, करना नहीं है। और वो चोर ने खरीद लिया, 2+2 पता चला 1 करोड़ की कंपनी तुम 500 करोड़ में खरीदते हो। बेवकूफी बनाने वाली बात है, सॉरी आई यूज स्लैंग क्योंकि मैं उसमें पैदा होकर ऊंचा बनाते हैं अपने को, अपने से बेवकूफ बोले आज के अपने वो क्या कहते हैं पॉलिटिशियन बोलो, करप्शन बोलो, वो सब दूसरी स्टोरी है साहब। अब लाइक आप उसके पीछे काम करो साहब, आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, जागृति करो, अच्छा कर रहे हो। बट ये बेचारे लोगों को तो 2 रुपए 5 रुपए अच्छा है यार, ये तो मैं तो उनमें से दे दो पैसा है, लेकिन जो करप्ट है, जो अपने देश को करप्ट कर रहा है, उसकी जान खाओ ना यार। And people like you can do it because you have that attitude. मेरे को तो पैसा कमाने का एटीट्यूड है ना, तो मैं तो कर नहीं पा रही हूँ, बरोबर है। तो बाद में उसको भी कॉल किया था, उसको भी कॉल किया था। और इतने से भी कम हुआ, इतने लोग तो अभी कितना 1 करोड़, साला करोड़ ही बोलना नहीं आता है। वो 2G का कितना कॉल है 1.7 हाँ लाख करोड़ थैंक यू सर। आपने बोला तो कम पड़ रहा है ट्विटर वाले यार, और ट्विटर से कुछ नहीं होने वाला, ट्वीट करने से तो कभी नहीं होने वाला है। तो मैं 10 ट्वीट कर दूं, मैं 10 लोग लगा दूं, जो इतना तो फाइनेंस है, इतना 10 लोग लगा के ट्वीट कराओ। चलो कभी बैक लेट्स गेट नो आई वाज काम लेना होता है। आपने 2 दिन बोला था, मैं 2 दिन खा लिया था, ठंडा किया मेरा काम ले लिया। राइट कैसे कमाएंगे, करप्शन वाला नहीं यू अभी करप्शन कर नहीं आपने 2 दिन बोले, मैं बोल दो मत चलाओ, मुझे मत चलाओ, व्हाट आर यू गेट बोल के मेरा आग लग जाती है। कुछ नहीं होता है गेट पे, तो अभी तो जल्द से होना है। कमिंग बैक टू द पॉइंट नंबर 2, सो व्हाट अगेन या सो आई टोल्ड यू दिस इज या, तो वो 500 रुपए वाला पेज नहीं, आप पेज 500 रुपए हो गया पर पेज, तो अपने को तो परवड़ा नहीं, हमने बोला ये बिजनेस मेरे काम का नहीं है, क्योंकि यू नो वो मलाई खाने के बाद यू नो वो क्या मिलता है, मलाई खाने के बाद वो क्या डाउन द लेवल मिलता है ना, so you don't like it, you don't enjoy it. So then a logical this thing was going for an ISP. ठीक है, expansion बोलो तो आप लोगों को expansion बोलो या जो भी बोलो. So then I started my ISP business. Now the most challenging part of this business was again, see I always believed that I want to get into conceptual level businesses which is little bit ahead of time. उससे फायदा क्या है, नुकसान क्या है? Ahead of time होता है लोगों को समझ नहीं पड़ता है. उससे कई बार ऑर्डर भी मिलते हैं, नुकसान होता है कि समझ नहीं पड़ता, इससे ऑर्डर नहीं मिलता. So it depends how you want to grow. So we again wanted to do a lot of R&D. Actually, basically our core strength as a company is we are more into technology. I think which you now don't believe, but that's a different story. So what we did was we thought कि हम लोगों को ISP बनना है, और because the license opened up in 1999, and so we got the गुजरात का license लिया, पूरे गुजरात में as a broadband ISP. अब broadband यार क्या भैया? अभी पता है, उस वक्त लोगों को नहीं पता था. इंटरनेट वाया केबल. तब लोगों को पता चलता था कि ब्रॉडबैंड यानी सर जिस तरह केबल टीवी आता है ना आपके घर, उस तरह इंटरनेट आपके घर आएगा. अच्छा ऐसा भी होता है, हाँ सर. फिर वो यू नो यूट्यूब यू टेल के भाई ये क्या कहते हैं, आपको टेलीफोन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, पैसा बचेगा, ब्ला ब्ला ब्ला. Now the most challenging part of this business was technology. Technology was never in place. We worked on the local area network technology. IT वाले लोग कितने यहाँ पे? सब लोगों में. तो local area network की टेक्नोलॉजी थी, आपको पता है 100 मीटर से ज़्यादा नहीं चलता है लाइन. We made it run for 10 kilometers without costly equipments, like costly routers or switches. We made it run on active and passive. Majorly we used passive instruments. Active switches बहुत महंगी थी, 50,000 लाख रुपए की स्विच है, अगर बिल्डिंग पे मैं थोड़ी लगाने जाऊंगी. तब हम 2,000 रुपए का आता था. तो you know using passive and with our जुगाड़, we guys are known for जुगाड़. ठीक है, तो जुगाड़ करके हमने वो बिजनेस चलाया. इस बिजनेस में भी काफी challenges आए अभी. The major challenge we got in this business was technology, which was in terms of that, like simple example, like people used to say कि भाई ये तुम कैसे चलाओगे? People used to laugh. कि यार 100 मीटर वाली चीज तुम 10 किलोमीटर कैसे चलाओगे? It was thanks to our people who did it, my team who did it. And what was my team consisting of? Understand that was, which is very important. My team consisted of people, few people who were with me from my Vizotech days. HTML programming वाले. दूसरे लोग थे कंप्यूटर हार्डवेयर वाले. So this was my team.
So what I want to try to tell you, with due respect to all the people who study MCSCs और वो 5 लाख 2 लाख के कोर्सेज करके आए थे, वो लड़के मेरे को पसंद नहीं थे क्योंकि उनका एक माइंडसेट था यार ये तो 2:3:5 है, चल ही नहीं, फंडा था उसका कि 2:3:5 के आगे चल नहीं सकता, ये तो चलेगा ही नहीं। अरे यार मैं बोलूँ यार तो चुप बैठना है यार, हम चलाते तो चलाने देना भाई। तो ये हार्डवेयर वाला बंदा चला लेता था, या ये जो मेरा HTML वाला लड़का था ना, उसको मैंने बोला तू लिनक्स चालू कर सीखना, और लिनक्स इसलिए हमने चालू किया सीखना क्योंकि वी डिड नॉट वांट टू गो फॉर अ पायरेटेड सॉफ्टवेयर। पायरेटेड सॉफ्टवेयर का कौन सा विंडोज एनवी, ठीक है, इट वाज अगेंस्ट आवर दिस थिंग, इतना आईएसपी तो तुम बिजनेस कर रहे हो और तुम पायरेसी पे थोड़ा काम कर सकते हो। सो व्हाट आई सेड कि नहीं हम तो लाइनक्स पे काम करके लाइनक्स पे मेरे बंदो एक टीम लाइनक्स पे काम चालू कर दिया और एक टीम ने ये सब आरएनडी, और सबसे पहले मैं वर्डप्रेस से चालू किया क्योंकि दैट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग टेरेन फॉर अस। द चैलेंजिंग टेरेन वाज कि जो केबल्स लेयर करने के लिए बहुत तकलीफ होती थी क्योंकि ओवरहेड इलेक्ट्रिक केबल्स जाते थे। अदर चैलेंजिंग है वो डिस्टेंस का बहुत है, यहाँ पे एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में 200-250 मीटर का जंप होता है, वहाँ पे एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री में कम से कम 700 मीटर 1 किलोमीटर का डिस्टेंस रहता था। So those were challenging things. We did that. So second what important thing what I want to tell you guys is that कि जब भी बिजनेस करो बहुत ज्यादा नहीं सोचना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो कभी नहीं करना, क्योंकि मैंने ये देखा, मैंने जितने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाए छोटे मोटे तो मैंने वो बिजनेस किया नहीं सीरियसली, क्योंकि वो तो समझ ही ना पड़े, क्योंकि जिनमें तो अपने किसी से पैसा लेना बनाना है वो स्टोरी है, वो ना खुद के पैसे डालने हो तो तुम्हें एक्सेल शीट देखोगे तो तुम खुद हंसोगे यार। और जैसे कि सिंपल है, तुम सोचोगे यार मैं 800 रोड पे तो 1000 कस्टमर तो ऐसे कर लूंगी, साले नहीं होते, मजाक है क्या? 10 होते, हाँ ये बढ़िया 10 हुए, आत्मा हाउस पे हमारे यहाँ सब केबल जा रहे थे, अभी भी याद है, परमिशन ये वो केबल ऑपरेटर, यू नो द अदर चैनल्स, बट यू विल बी सरप्राइज्ड। मेरे बिजनेस में कई लोगों को लगता है उधर केबल ऑपरेटर हाउ कैन यू डील विद दैट? आई सेड दे वर द मोस्ट इजी पीपल फॉर मी टू डील विद, क्योंकि क्या है इनफैक्ट केबल ऑपरेटर से डील करने का बहन आया दे वुड रिस्पेक्ट अस मोर, ठीक है, वो क्योंकि वो केबल ऑपरेटर, और एसोसिएशन वाला वो ब्लू व्हाइट कॉलर थम्स, व्हाइट कॉलर थम्स इज द वर्ड यूज करो एसोसिएशन वाला को कि हमें तो मैं सेवा करिए छी, हमारा एसोसिएशन माटे करके बैठ जाओ, जो चिपका चालू करेंगे 3000 का रेंट दो, 4000 का रेंट दो, कोई मजाक है क्या? साला तेरे यहाँ एक कनेक्शन में 4000 का रेंट दूंगी क्या तेरे को महीने, यानी साल के 48,000 रुपए, और एक कनेक्शन यदि 2000 रुपए का भी हो महीने का तो मेरे को कितने पहले 24,000 रुपए के सामने 48,000 में निकालते। सो दे वर बेसिकली व्हाइट कॉलर ठग्स। मैं तुमको चोखा बोलती हूँ कि आप एसोसिएशन नाम के झंडे काटते हो और लूट पाट के धंधे करते हो, तो उसके सामने केबल ऑपरेटर मोस्ट इजी टू डील, क्योंकि उनको समझाया जाता है, तो इनफैक्ट दे वुड हेल्प अस आल्सो टू गेट कनेक्शंस, या टू गेट कनेक्शंस टू गेट दिस थिंग लाइक दैट। सो कई बार बिजनेस में आप सोच में ना कि व्हेन यू स्टार्ट अ बिजनेस आपको कई बार ऐसे तो अरे यार ये मेरा मेजर हर्डल होने वाला है, ये मेजर प्रॉब्लम होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो आप एनालिसिस नहीं करते हो ना वो होता है। सो यू हैव टू बी ऑलवेज रेडी फॉर दैट, दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू गाइस, कि गेट योर कंसेप्ट्स फंडास वेरी क्लियर इन लाइफ। अगर आप सोचोगे कि मैं एकदम मस्त स्ट्रेटजी करूंगा, एकदम मस्त प्लान करूंगा, अरे तो क्या है एग्जीक्यूट करना, प्लान और स्ट्रेटजी करना तो यहाँ बैठे बैठे तो सबको आता है, मैं भी कर सकती हूँ प्लान और स्ट्रेटजी, कितने टाइम लगता है? ड्रीम बिग करो, मैं भी आई एम नॉट फॉर ड्रीम बिग, आप बोलो स्मॉल, आई एम नॉट फॉर स्मॉल, क्या ड्रीम बिग, सर ड्रीम बिग कसम से पूछ लेना इनको सबको, अकेले में बड़े आदमियों को कि साले तुमने ड्रीम बिग किया था, वो ड्रीम बिग नहीं किया तो हो गया, बाद में बोला ड्रीम बिग सही में नहीं एक्सेप्टेड यार, वो नहीं हकीकत है यार। तो कभी मैं ड्रीम बिग मत करो, मैं तो बोलूं ड्रीम स्मॉल करो, अरे ड्रीम मत करो लेकिन करो नहीं सीरियसली, क्योंकि अगर तुम ड्रीम करोगे तो कई बार नहीं भी होता है, क्योंकि तुम उसको ड्रीम समझ लेते हो। बट आई फर्मली बिलीव कि स्मॉल करो और कुछ भी चालू करो, चालू स्टार्टेड आइडिया पीपल कुछ भी हो, तेरा आइडिया बेस्ट और कैसा लगा मेरा आइडिया, मैंने कहा तेरा आइडिया जो होगा तो फील्ड में जाएगा ना अपने आप पता चल जाएगा, और नहीं और अगर वो पता चलता है और उसके बाद में तो उसको चेंज कर, दैट इज योर बिजनेस इन वर्क। नहीं यार मैंने तो अगर चलो मैं सोचती थी कि नहीं मैं तो मल्टीमीडिया का बिजनेस करूंगी, जब उसने आदमी ने नाम बोला तो मैं क्या करूंगी करके मैं बैठ जाऊंगी, तो बिजनेस होने वाला है नहीं होने वाला है ना। इसलिए अल्टीमेटली यू हैव टू योरसेल्फ टेक थिंग्स इन योर हैंड एंड डू इट, एंड इफ यू फेल, माय फेवरेट लाइन इज फेलियर इज फर्टिलाइजर फॉर सक्सेस। कई लोगों को चिंता आती है सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ठीक है, आई कम फ्रॉम द अदर स्कूल ऑफ आई से कि फेलियर इज द फर्टिलाइजर फॉर सक्सेस। अगर आप फेल नहीं होगे तो सक्सेस कैसे मिलेगी आपको? ऐसे तो मिलने नहीं वाला। अगर एक और चीज याद रखना, अगर आपको सक्सेस जल्दी मिल गई ना, मेरे फ्रेंड के साथ ऐसे ही हुआ, क्योंकि ना आपने जब बिजनेस चालू करते हैं फ्रेंड भी करे अपना, अपने करे, और वो अपने से ज्यादा सक्सेसफुल है, उनको तो जेलसी हो जाती है। मेरे को तो होती है, कई लोगों को होती नहीं, पता नहीं है, तो मेरे को तो जेलसी होती है, तेरे को सक्सेस मिली, यहाँ मैं तो अभी किस रही हूँ। अब हुआ क्या, धीरे धीरे मैं सीढ़ियाँ चढ़ने लगी, और वो धीरे धीरे सीढ़ियाँ धीरे धीरे उसकी सीढ़ी धप से गिर,
पता नहीं कुछ आहिस्ते गिर गई। तो उसने मेरे को फ्रेंड ने तब एहसास कराया कि देख गुजर, तेरे को धीरे धीरे सक्सेस मिली तो तू डाइजेस्ट कर रही थी उसको, और तेरे को जब नहीं मिल रही थी फेलियर था तो यू वुड बिल्ड योर इम्यूनिटी अगेंस्ट फेलियर। उसको सक्सेस जल्दी मिल गई, इसलिए ही कुड नॉट बिल्ड हिज इम्यूनिटी अगेंस्ट फेलियर। तो जब उसको तुरंत फेलियर मिली तो ही उसका हेल्थ बिगड़ गई, डिप्रेशन आ गया, ऑल दोस थिंग्स हैपन। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको सक्सेस जल्दी नहीं मिलनी चाहिए, वरना आप फेलियर को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाओगे। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डाइजेस्ट फेलियर। अगर डाइजेस्ट फेलियर कर पाओगे तो सक्सेस हो सकती है। तो कमिंग बैक टू फेलियर इज फर्टिलाइजर टू सक्सेस। एक और इंपॉर्टेंट फंडा कि आईएसपी बिजनेस लॉट ऑफ मनी रिक्वायर्ड, सबको दिमाग में था करोड़ों रुपए, हाँ चाहिए, पैसे ऐसी चीज है, पैसा खाना ऐसी चीज है कि डालो इतना कम खाओ इतना कम, करेक्ट? एटलीस्ट फॉर मी खाना ऐसा है कि खाओ इतना कम, और पैसा है कोई भी बिजनेस में डालो इतना कम, राइट? बट वी वर वेरी क्लियर फ्रॉम मंडे, आई टोल्ड माय गाइस वेरी क्लियरली कि लेट अस सी इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर आप अभी प्रॉक्सी सर्वर्स तो सब समझते हो, प्रॉक्सी सर्वर्स लगा सकते हैं, तो तब वो ब्लैक बॉक्स से प्रॉक्सी क्या आते थे, मेंटली 2 5 6 6 7 7 लाख के, और प्रॉक्सी सर्वर्स आपकी बैंडविड्थ कम यूज होती है। मैंने कहा नहीं, मेरे पास 5 7 लाख नहीं, मैं मेरा कंप्यूटर लाख रुपए के कंप्यूटर या 1.5 लाख के कंप्यूटर को मैं प्रॉक्सी सर्वर करूंगी सॉफ्टवेयर डाल के, ठीक है? सो दिस इज व्हाट टाइप ऑफ R&D we used to do, lot of R&D we used to do. R&D is one of my pet subjects जो मैं आपको करती हूँ, and I also used to get guys to do it। और सब अनमैरिड लोग थे, कुछ लोग हॉस्टल में भी रहते थे, एकदम जुनून था काम करने का, और रिजल्ट्स मिलते थे, जैसे रिजल्ट मिलते थे यू फील गुड अबाउट इट। तो व्हाट आई डिड, जो 5 6 लाख का इन्वेस्टमेंट में लाख रुपए में कन्वर्ट कर दिया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वहां दिमाग लगाओ, वरना खरीदा जो, जैसे कि कई कंपनीज ने आईएसपी दूसरे कंपनीज ने बड़ी बड़ी चीजें खरीदी, बैंडविड्थ शेपर्स, तब किसी को पता नहीं था बैंडविड्थ शेपर क्या है। यू भी समझ रहे, अभी आप जो डेटा स्कीम समझ रहे ना, एमबी स्कीम सुनिए, डेटा ट्रांसफर जो भी आजकल आती है, पहले किसी को पता ही नहीं था, पहले आवरली और अनलिमिटेड 2 चीज थी। आई स्टिल रिमेंबर दोस डेज कि हम लोग ने एमबी जब बेचनी चालू की 500 रुपए 100 एमबी, ठीक है, यानी 5 रुपए पर एमबी हुई उस वक्त। अभी तो आई थिंक 5 पैसे 50 पैसे पर एमबी है मेरे ख्याल से। तो उस वक्त मेरी मार्केटिंग टीम आके बैठ गई कि मैडम हमसे नहीं बिकता है, भाई क्यों नहीं बिकता है जैसे एमबी स्कीम, लोगों को समझ नहीं आता है। मैंने कहा तुम क्या समझाते हो? तो बोले हम कुछ व्हाटएवर दे सेड, मैंने इस तरह नहीं समझाते, यू डू वन थिंग, गो टू पीपल हु आर यूजिंग अनलिमिटेड। तो जो अनलिमिटेड 2000 रुपए में बेचते हैं उनको तुम 500 रुपए में ला दो, अनलिमिटेड मैं नहीं बेचती, मैंने कहा तुम उनको 500 रुपए में ला दो, ताकि उन लोगों को 500 रुपए में लाने से वो अनलिमिटेड मेरे में शिफ्ट होता है। अदरवाइज देयर इज नो फन अनलिमिटेड के सामने वो 2000 में अनलिमिटेड बेचो, तुम 1800 में बेचो, क्या फन है? एंड अल्टीमेटली आई डिडंट वांट माय कंपनी टू ब्रीड, बिकॉज़ इट्स लाइक दैट, आप थाली खाने जाते हो और 4 लोग एक ही थाली पर अनलिमिटेड खाएंगे, तो कंपनी लॉस होता है रेस्टोरेंट को। सिमिलरली आई वाज नॉट इंटरेस्टेड दैट। तो आई कन्वर्टेड द होल, जो आपको क्या बोलते हैं बैटलफील्ड में जो होता है ना फंडा कि बैटलफील्ड का फंडा क्या है, तो मैंने उसको को जो अनलिमिटेड की स्कीम के बदले सबको मैंने 500 रुपए अनलिमिटेड लिमिटेड स्कीम पे ला दी। और मैंने कस्टमर को कहा कि सब आपको 500 एमबी से ज्यादा चाहिए, क्योंकि उसमें कितना हेवी एप्लीकेशन नहीं रहते थे। और मैंने कहा अगर आपको चाहिए तो आप मुझे पर एमबी 5 रुपए दे देना। वहां पे एंड आई फाउंड आउट वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फिर पैसा ले लो पर हमने स्पीड જોઈએ છે। मैंने कहा मैंने कहा साहब मैं तो आपको स्पीड दूंगी, क्योंकि आपको स्पीड नहीं दूंगी तो आप यूज नहीं करोगे तो मुझे पैसा नहीं दोगे। So you know, so I delivered what the people wanted. So that is one way I would sell it. Second way, those people who could not afford 1800 or 2000 rupees, उनको समझा कि देखो साहब 1800 2000 का हमारा छुट्टा है, 500 रुपए खाली है पर मंथ, तो दे कन्वर्टेड। तो जो बेंच सीटर्स थे वो भी हमने कन्वर्ट कर दिया। So you know we did lot of creativity out of the box thinking, which once अभी बैठे अगर आप मेरे को पूछोगे कि जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था, दिमाग में था भी नहीं कैसी स्कीम आ सकती है। ये तो जब तुम करोगे, फील्ड पे करोगे, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाई आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि जितने भी प्रोडक्ट्स हमने फिर ब्रोकर सब ब्रोकर्स के लिए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे, तो यू नो यू हैव टू, माय फंडा इज वेरी क्लियर, कुछ भी प्रोडक्ट लॉन्च करो फील्ड पे चले जाओ वो प्रोडक्ट लेकर, ठीक है? उसको फील्ड पे जाने के बाद कस्टमर से बात करो और फिर जानो कि कस्टमर को उस पे और क्या चाहिए या क्या नहीं चाहिए, एंड देन उस पे तुम उस चेंजेस के बाद तुम उसको बेचो। ये मत बोलो कि नहीं सब मेरे को तो ये प्रोडक्ट है मैं तो ये बेचूंगा, यू कैन नॉट डू दैट। So this is the level of, I mean, one more, I mean, very important example. अब e-com opportunities private limited का branding करना था, you know, brand is important when you are in the local market and selling things. Your brand is very important thing. तो अपने पास इतने तो ऐसे तो पैसे नहीं। And you had only one license, or you had some other companies who were also got that license for the same? There were a lot of companies, 2-3 more companies, and they would buy a lot of costly things also. तो branding करना था। तो ब्रांडिंग के लिए पैसा बहुत जरूरी होता है, तो मैंने कहा नहीं भैया पैसा तो है नहीं। तो व्हाट आई डिड वाज
I converted my infrastructure, जो मेरा infrastructure था, like my cables, my customers, where my infrastructure, my property. तो मैंने उनको convert किया और उनको मैंने कहा कि let's say I'll give you an example कि नवरात्रि का टाइम था, तो lot of people wanted कि नवरात्रि के टाइम पे उनके घर में you keep your banners and you promote their Garba. So what I Garba? So what I did, I promoted their Garba on my network to my customers by mailers, by putting up flashes and things like that. ईमेल फ्लैशेस फिर हमारे डायलर्स पे उनके एडवर्टाइजमेंट ब्ला ब्ला ब्ला। उसके कारण क्या हुआ कि अल्टीमेटली वी डिड लॉट ऑफ बार्टर सिस्टम्स। सो दिस इज हाउ व्हाट वी मेड आवर ओन ब्रांड। और लोगों को एक जमाने में वो एसजी रोड पे 20 गरबा वेन्यूज थे, 20 गरबा पे आपको ई कॉम दिखाई दे, पासेस के पीछे कॉम दिखाई दे, तो लोगों को लगा अरे यार ये तो। अब हुआ क्या, सक्सेस ब्रिंग सक्सेस, तो लोग एक उस पे हमारा देखे ना सिक्का, तो हमारे पास आ गए। अब वो भैया पैसा वैसा नहीं है, गलत फहमी में रहियो मत, इस तरह करना है तो बोल। दूसरों ने भी किया हो, उसको लगा दूसरों ने किया तो मैं भी करूं। You know this type of thing, this cascading effect helps a lot. तो इससे हमको फायदा बहुत हुआ कि एक आया, दो आया, तीन आया, फिर रेस्टोरेंट्स पे हमारा काफी ब्रांडिंग होता था, फिर गरबा हुआ, फिर ये कौन सी नाइट होती थी, वो गाना गाने का कैरियोके नाइट्स नहीं, वो कैरियोके नाइट्स नहीं यार, वो रॉक शो नहीं यार, वो देसी लोग गाते, लता मंगेशकर टाइप गाना गाना आते ना। हाँ स्पॉन्सर नहीं होते पहले बहुत, तो उदित नारायण याद आ गया, उदित नारायण गाना गाना था, ऐसी नाइट्स पे हमने बहुत स्पॉन्सर कैसे किसे हुए। और फिर फायदा क्या, हम क्या करते थे, जो उसकी डील करते थे ना 200-500 फ्रास फ्री में मांग लेने का और वो अपने कस्टमर को देने का। उदित नारायण की नाइट के लिए कस्टमर लाइन लग जाएगा ऑफिस के बाद, जैसे एक ईमेल जाए ना, बड़ी लाइन लग जाएगा, हमको पास चाहिए। इससे हमारी ब्रांडिंग बहुत बढ़ती है, भयंकर बढ़ती है। लोगों को लगे हमने कुछ 2-5-25-50 हजार दिए होंगे, 2-5 लाख दिए होंगे, लेकिन ऐसा लगे तो लगने देने का मना नहीं करेगा। नहीं इट्स ओके, मैं अच्छा लगता है, एट लीस्ट यू फील रिच अबाउट इट। बट व्हाट आई वांट टू टेल यू गाइस कि फाइनली एट द एंड ऑफ द डे दिस वर, आप लोग पैसा एंटरप्रेन्योर, पैसा चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, बुद्धि चाहिए और यूज करो उसको। भगवान ने सबको पैसा को बोलते सबको एक साथ दिए ना, अलग तो दी नहीं है, हम यूज नहीं करते। प्रॉब्लम हमारा क्या, हम उसको यूज नहीं करना चाहते, तो इट्स बेटर वी स्टार्ट यूजिंग। So this way we did lot of things. Currently we are heavily into lot of innovative stuffs. Innovative stuff से जब हम ये समझते हैं कि ये सब सॉफ्टवेयर ऑफशोर्स ये सब अच्छी बात है, but we started into cloud computing. अब एक्चुअली क्लाउड कंप्यूटिंग में अहमदाबाद में एक्चुअली जितने मेरे कस्टमर्स एक्सिस्टिंग कस्टमर्स उनको समझ नहीं आता है, तो अभी मैं इसलिए अहमदाबाद में इसका कम काम करती हूँ, बट फॉरेन में काम होता है अच्छा है, मनी इज मनी, या कैसे भी आ रहा डॉलर का भी अच्छे लगते हैं, मतलब 47-48 चल रहा है ऐसे डिफरेंस। We also got into augmented reality क्योंकि ultimately at the end of the day these type of things give us lot of satisfaction. डालना भी तो हमारे existing business से निकलती है, जो ये satisfaction देता है that is now giving us a niche areas में हम काम करते हैं. So this is what we currently do, and I think that's it. So you have multiple enterprises. How do you manage it? Like हाँ, ये मेरा रीच गुजरात प्रोजेक्ट है. Sorry मैं कहना भूल गया. रीच गुजरात में क्या हुआ, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था whatever. मैंने अभी इसको डॉट में रखा है. We tied up कहाँ? Good point. We tied up the government of Gujarat, tourism corporation of Gujarat Limited. और उसमें क्या किया कि उसको बोला कि तू हमको प्रमोट कर और हम तेरे लिए कुछ पैसे भी मिले मेरे को, और ट्रेडर नो करप्शन. आज तक मेरे सारे बिजनेसेस गवर्नमेंट में भी मेरे बिजनेसेस चलते हैं ट्रांसलेशन के. हाँ यार मेरे ट्रांसलेशन का भी काम है, बहुत बड़ा काम है, बहुत करते हैं, इंडिया के लिए करते हैं, गवर्नमेंट के लिए करते हैं, आउट ऑफ उसके लिए करते हैं, क्योंकि अच्छी फ्रेंकली स्पीकिंग ट्रांसलेशन इज अ गुड बिजनेस. कम से कम अच्छा मार्जिन है, बहुत अच्छा मार्जिन. और अभी वेबसाइट का भी बिजनेस सुना था ना, मार्जिन अच्छा था. आईएसपी के बिजनेस में क्या हुआ, मार्जिन कम होने लगा. बीइंग एन एंटरप्रेन्योर भी एक्सीडेंट, क्योंकि अपना खुद का पैसा लगा है भाई. वी आर नॉट एन एमएनसी, टाटा पाटा नहीं है, टाटा एयरटेल नहीं है कि लोगों के पैसे लगे. हमारे तो खुद के पैसे लगे. तो इट इज वेरी डिफिकल्ट. तो फिर जब अब मैंने सोचा कि वेल्थ क्रिएशन नहीं हो रहा है, तो देयर वाज नो पॉइंट. आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय आईएसपी बिजनेस के जो बच्चे क्या वी हैव अ वेरी गुड फंडामेंटल इन आवर बिजनेस. मेरे पास नेवर पिक अप एनीबॉडी फॉर कंपटीशन. आज तक मेरी कंपनी में कंपटीशन का कोई बंदा या बंदी काम नहीं करती है. उस वक्त भी नहीं करती थी, आज भी नहीं करती और नहीं करेगी. मेरा फंडा क्लियर है. कंपटीशन आई स्टिल रिमेंबर फोन आते कि हम लोग इस आईएसपी से है, वो आईएसपी से है. आई सेड सॉरी, आई डोंट वांट पीपल फ्रॉम अदर दिस थिंग. टू रीजंस. वन इट माय प्रिंसिपल्स आर नॉट कि मैं कंपटीशन से आदमी क्यों उठाऊं, एंड सेकंड जो कंपटीशन विद ड्यू रिस्पेक्ट, कंपटीशन हेल्दी भी होता है बट कीड़े होते हैं. वो ऐसे कीड़े मेरी कंपनी में लाके मैं और क्यों गंदगी फैला पाऊं. ये मेरा फंडा क्लियर है. So I would never take up people from competition, but what I would give chances to freshers. Of freshers, 80-90% people in my company are freshers,
Because good point is कि they are freshers. The bad point is they are freshers. They don't know anything. The good point is as they don't know anything, I can mold them. Again, the bad point is कि they cannot take pressures. And दो गाली बोलो, मेरे बाप ने भी नहीं बोला, मुझे बोलो, अरे यार तो सुन लेना. अब बाप ने नहीं बोला तेरे घर देखना है नहीं थी क्या मैं? नहीं तो देख सकता क्या? और गाली तो मैंने कहा होगी. Sorry यार, अगर तेरे को इतने गाली में लग जाएगा, तो then this is the wrong place for you. If you can't take pressure, then this is. Sunday छुट्टी किस चीज़ की? मुझे तो यही समझनी पड़ती है कि ऐसे अपने लोग से वो मोटर बाइक चला के वो एड्रेनालिन दिखाते हैं और संडे छुट्टी के लिए काम करो, प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, एफिशिएंसी बढ़ाओ. सो कमिंग बैक टू सो दीस जो टिक जाता था, तो ऐसा टफ आदमी होता था वो मेरा टिक जाता था. बाकी और जिसको 2 महीने पहले गाली दी उसको छोड़ रहा हूँ. मैडम ने 2 महीने पहले गाली दी टाइप में छोड़ रहा हूँ. मैंने कहा तो 2 महीने पहले छोड़ देता यार, इतना रुका क्यों तू? बट अगेन डायरेक्ट बैड मेमोरीज. और बैड मेमोरीज एक भी चीज, सॉरी गाइस बट आई लाइक टू टेल यू कि मैंने किया जो मेरे यहाँ फ्री काम करने जाते थे उनको मैंने सैलरी भी दी है, बट दे हैव आल्सो गॉन एंड सोल्ड माय सॉफ्टवेयर. तो दैट्स अ बैड पार्ट ऑफ इट. शायद गलती मेरी थी कि मैंने ज्यादा भरोसा रखा था, बट दैट्स अ वेरी बैड पार्ट ऑफ इट. और उनका एक्सक्यूज करती मैडम मैं मेरे घर में अकेला कमाता हूँ, मेरे पेरेंट्स ने मेरे को इतना सारा बड़ा किया पढ़ा लिखा के. मैंने कहा पढ़ा लिखा के बड़ा के चोरी करना सिखाया क्या कि तू जाके सॉफ्टवेयर बेचेगा और डबल सैलरी में दूसरी कंपनी में कभी जॉब मिलेगी, वरना तेरे को ऐसे तो डबल सैलरी कोई देगा नहीं. सिंपल ना. यू आर सेलिंग माय सॉफ्टवेयर और क्या सेलिंग माय सॉफ्टवेयर जस्ट यू आर गेटिंग डबल सैलरी. बट दैट ये गलती मेरी थी. मैं कहा मुझे एक्चुअली भरोसा रख के पूरे सॉफ्टवेयर के मॉड्यूल्स एक जगह रखने की चाहिए थे. फिर मैंने वो सब स्टाइल जो भी फिर करना होता करता है. एक बार गिरता है, मींस एक बार बेवकूफी करता है, बार-बार बेवकूफी थोड़ी करेगा वो. सो कमिंग बैक टू You how reach to that sir. Thanks. The reach to that point was that ये बहुत सुपर प्रोजेक्ट था नहीं है भी. तो what I told government कि मैं अपनी सेंट्रलाइज्ड रिजर्वेशन करूँगी. They also paid me for the software and you promote me. अब गवर्नमेंट प्रमोशन क्या, उनके ब्रोशर्स यू नो दे पार्टी लॉट ऑफ एग्जीबिशंस. तो ब्रोशर्स के पीछे छप दिया था फॉर ऑनलाइन बुकिंग reachgujarat.com. दिस वाज अ पायलट प्रोजेक्ट फॉर गुजरात. अगर ये सक्सेसफुल होता तो मैं दूसरे स्टेट में भी करती. I tied up with around ऐसे 2000 properties. Properties है कि होटल गेस्ट हाउसेस, रेस्टोरेंट, होटल गेस्ट हाउसेस ये सब. Now the best thing कि मेरे को 500 प्रॉपर्टीज में ऑनलाइन करती हूँ और मेरे को ऑर्डर्स ऑनलाइन आना चालू हो गए थैंक्स टू दैट टाई अप. वरना अगर ऐसा टाई अप मैं नहीं करती तो nobody would have known Reach Gujarat. ठीक है ना? Because people go to Gujarat tourism, they don't come to Reach Gujarat. When they check on Gujarat tourism के पीछे नीचे Reach Gujarat है, then they used to come to Reach Gujarat and no booking. So मेरा bookings तो होते थे, but problem क्या हुआ कि 500 रुपए का गेस्ट हाउस होता है, 10% की मार्जिन का बिजनेस है, नहीं 50 रुपए का मार्जिन का बिजनेस है. अब मैं जब वो गेस्ट हाउस वाले को फोन करूँगा या मैं कॉल सेंटर से फोन करूँगी भाई ये बुक हुआ है आप प्लीज आके आप बुक करो, तो गेस्ट हाउस वाला आड़ा वाला हो जाए. बोला नहीं है रूम रिनोवेट हो रहा है ये वो. क्योंकि उसका क्या प्रॉब्लम होता था कि उसको तो अगर रिक्शा वाला लेकर आता है जो गेस्ट हाउस पे रिक्शा वाला नीचे लेके जाता है ना जो स्टेशन से गेस्ट हाउस की बुकिंग रिक्शा वाला ही ले जाता है कि चलो साहब ये अच्छा हाउस है आप यहाँ रह लो या ये अच्छी होटल है आप यहाँ रह लो. तो वो उनको रूम दे देते थे. वेरी सिंपल. वो भी उनका भी अपनी जगह सही था. तो मुझे प्रॉब्लम क्या होने लगी कि मेरे को रूम नहीं दिया. अब जिस आदमी ने बुक किया अलग से तरीके से किसी आदमी ने बुक किया तो उसको एचडी करो. तो आदमी तो पैसे से पहले गाली गलौज चालू करो कि तुमने मेरा पैसा नहीं दिया. जब हम बोले सर आपका क्रेडिट कार्ड अभी तक तुमने ऑथराइज नहीं किया है. ये वेरी सिंपल. ऑथराइज करो ना तो ही हमारे में पैसे उतरे. जब अगर हम ऑथराइज करें, वो हम ऑथराइज करते नहीं है. वो पहले बिलीव ना करे, फिर अगर उसने बिलीव कर लिया है तो वो क्या कहते हैं, फिर हम उसको समझाए कि ठीक है सर आपको दूसरा कोई तो चलो सोचता हूँ करके फोन रखते हुए, या फिर हमने बोला ठीक है मेरे को बताओ, फिर दूसरे दो गेस्ट हाउस को फोन करने का. इट वाज अ वेरी मेसी साइकिल. कुछ साले 50 रुपए में से क्या खाने का क्या पीने का. एंड बीइंग इन दिस बिजनेस इतने सालों से खुद के बिजनेस क्रिएशन ऑफ वेल्थ हो नहीं रहा था. मार्जिन ही नहीं था. मैं खुद खाऊंगी क्या, लोगों को खिलाऊंगी क्या. सो दैट इज द रीजन व्हाट आई सेड लेट मी फर्स्ट सी इफ आई कैन मेक. क्योंकि मेरे पास ये पोर्टल्स थे, ये कौन सा पोर्टल है वो, मेक माय ट्रिप, ट्रैवल गुरु, दिस ऑल वर्ल्ड. आई एम नॉट स्टॉप्ड इट क्योंकि अभी भी मेरे पास anyone wants to ask questions now? Augmented reality. I mean, what sort of business you are in? Augmented reality. it's an IT. It's a Yeah, I know. I have worked on augmented reality application for iPhone. ठीक है भाई. Yeah. So what's the question then? When I mean, you provide what sort of augmented reality? Mobile. What we do, yes. We provide an application which runs either ways. Majorly, obviously, it will run on your mobile only. Majorly, augmented reality works on mobile only. Yeah. And we make custom made things. We don't make off-the-shelf things. I mean, do you have an application already? We make lots of applications. I said custom made, not off-the-shelf. Custom made in terms of let's say temperature. Temperature application. Okay, let's say कि यहाँ पे example I just augmented reality is the interface between a real world and the natural virtual world and the real world. Part of an interface which you can use it through with the help of your mobile right now. Sixth sense is something where you would not even require a mobile, so that's a different story.
So ultimately with augmented reality, I'll just give you an example. Okay, there's a big screen out here, and I'm in a retail shop, and I picked up 2-3 shirts, and so that those things will be fit in there. मैं यहाँ खड़ी रहूँगी, मेरे खड़े रहने से मेरा body का पूरा measurement, not just my face or my figure or things, but full measurement will go inside it, and then we will try. Okay, how does this red shirt look on me, or how does this green shirt look on me? Does it fit me or not? 14 size fits me, 16 size fits me, 18 size fits me or not? वो अपने आप सब हो जाएगा. So you don't have to go and try those things. That is one part. So you know the real world and the real world, and those clothes are currently the virtual world. So that's the mixing of real world and virtual world. Second example, what we work on, we are currently working on, is a very good thing. So let's say currently we are sitting here and I want to understand the temperature of बाहर का मुझे temperature जानना है. तो with my mobile phone I will capture that particular area. So GPS के through वो particular area का capture होगा. और GPS के थ्रू कैप्चर होगा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड चेक होगा, एंड GPRS के थ्रू पर्टिकुलर जो टेम्परेचर सर्वर है वहाँ पे जाएगा कि ये पर्टिकुलर सर्वर ये पर्टिकुलर एरिया में अभी क्या टेम्परेचर है. यू गेट माय पॉइंट? सो तो उससे आपको अभी पता चल जाएगा कि वहाँ उस एरिया में क्या टेम्परेचर है. सो अल्टीमेटली योर कंप्यूटर the way it works simple, very simple. Your mobile is acting like mobile camera is acting like a capturing thing. Then your mobile is acting somewhat acting like a processor or a communication medium, which sends that particular communication to the servers, internet servers or web servers or whatever. The servers processes that information, and then that server again processes the information and gives it to the mobile, and that's what you can see in your browser. So this is what currently augmented reality. So the virtual and the real world are being mixed or overlap, and that's what augmented reality is. That's that type of application. Yeah. Do you get local customers for it? For web pages, they are difficult to find. नहीं web pages अपना अच्छा है. नहीं अब तो see touch wood. I'm in this business for 15 years, 15, 16, 18 years, and still I'm holding on to around 200 or 250 customers who are with me since the day I started my business. So though we retain our customers, simple as that. So we are very clear. Customer तो कहीं भी कोई भी level पे जाना नहीं चाहिए. Customer के साथ ego भी नहीं रखो, कुछ भी ना करो, sorry sir करो, अपना पैसा निकालो. So how big is your team? See, we have yeah. Now what happened? A very good question. It was a very challenging thing. Once upon a time it happened, sir. But I think now there's the last question I'll give. Because people want to leave. So we have one more guy waiting for. Who is that? You? I'm so sorry. You're there? Okay, I thought I was the last one. Sorry. Okay. The point about it was that the customer body. What happened that now being in this field, what you realize, with due respect to you again, guys, that 500, 1000 अभी तो 500 तो कम है, 1000, 2000 रुपए पे 3 महीने में जॉब मारूँ. ठीक है, मैं तो परेशान हो गई. मैंने किस तरह धंधा थोड़ी करूँगी मैं, क्योंकि अल्टीमेटली वापस वेल्थ क्रिएशन तो मेरी हो ही नहीं रही थी. और लोगों की वेल्थ क्रिएशन तो मैं बाद में करूँगी, मैं तो मेरी पहले करूँगी. तो मैंने क्या किया, I started having virtual benches. ठीक है, आपके देशी भाषा में you can call them freelancers. I call them virtual benches because they give you more output. So coming back, then your question was that, no, how many people? Your question. So see, we have different teams working at different places, and yeah, we are not good in all the technologies. Very simple. Order जाना नहीं चाहिए, outsource करा दो. दूसरे बच्चे किस काम किया? जरूरी तो नहीं हर चीज हो जाएगी, but my core team, my core team has to be in place. The reason why अगर core team, क्योंकि 80% काम तो coders है, जब being coders 80% काम होता है, जो 20% काम होता है, वो जो core team करती है, that is very important. So if you talk, I would right now say around, let us say, हाँ, we are also in the cloud computing, तो वो मेरे remote admins वहाँ काम करते रहते हैं. You don't require, वो जरूरी नहीं उनको यहाँ बिठा के क्या करूँगी मैं, वो तो मेरे को head overhead पड़ रहे हैं. So per ticket और वो सब काम होते हैं वहाँ पे. So if you talk it that way, I have around 300 to 400 people working. If I talk it in terms of the people working here and there, because cloud computing a different team takes care of. Augmented reality, my core team works here, and people out here at different places work here depending on the applications. जैसे कि let's say high-end graphic applications चाहिए मेरे को, तो I cannot expect कि on certain things 3D rendering चाहिए होती है, 3D stuff चाहिए होता है. So that I don't believe कि मैं उसको यहाँ पे कराऊँ, क्योंकि why invest in unnecessary in the technology again, 3D stuff requires a lot of processing powers. And yeah, one thing, जो foreign companies के साथ काम करते हैं, it's very necessary that you should have all the software with, not pirate, you should buy it. So what I do, I cannot every time go into it. So what we do is we either use applications, क्या कहते हैं उसको, ASP क्या बोलते हैं उसको? नहीं, open source तो मैं use करती हूँ, open source तो by default है. नहीं, मैं buy नहीं करती हूँ, मैं दूसरे servers पे, जैसे कि MS Office, you don't require to buy it, you can. उसमें अच्छा वर्क कौन है?
suitable software. Each one. I cannot afford to buy software every time because we work with a lot of different technology. So I work in such a way that I don't require to buy them, but still I get a license for them. Something like that. I'll explain to you. उसके एक अच्छा word था just so Jatin, coming back to this. So thanks. You have to find out solution, guys. You cannot have people on a bench or you cannot put in money. So you find out solutions that how you can run your company in such a way that everybody else. You know. Thank you guys.